इस तरह अभी हम हमारे साथ मुसलमान भाइयों ने यहाँ पे कोऑपरेट किया है, हमारे साथ सेलिब्रेट किया है। आप मुसलमान हैं तो इस तरह हमें बड़ी को टारगेट करना इतना गंदा माहौल कर दिया ना, लड़कियां तो बिल्कुल सेफ ही नहीं रही। सीरियसली मैं खुद बोल रही हूँ। ओ भाई साहब, मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ, हमारे फूफा घर पे है। आप देखो यहाँ का बिहेवियर। ओ माय गॉड। लड़कियां निकल रही, नंबर दे दो मुझे, फूफा घर पे है, वहाँ पे आ जाओ। शेम ऑन यू यार। लोग लड़की और फीमेल्स को टारगेट, पता है, उनके ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, ये सब टारगेट करते हैं पिचकारी से। और जब मैंने बोला तो उनको बोल रहे कि तू क्या मरने आई है यहाँ पे, नंबर दे जा अपना। रात में लाइक बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड्स होते हैं। ओ भाई साहब, I don't ever slow up, no I don't नहीं take shit. नहीं, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. मैं मानता हूँ कि मैंने काफी दिन I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to सर take away. आज I could play a पाकिस्तान भर million में mind हमारी games, but हिंदू it's not a कम्युनिटी six, जो है वो not अपने illogical. मस्ती जोशो खरोश के साथ होली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रही है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि होली मनाई क्यों जाती है? Believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. तो इसकी बुनियाद भी पंजाब है, मुल्तान इसकी बुनियाद है। मुल्तान से निकली हुई है। मुल्तान में आपने कभी देखा होगा, विजिट करने का मौका मिले तो वहाँ जाके देखें कि उसकी बुनियाद है जो कि मुल्तान है। मुल्तान में एक राजा था, राजा अहमद, वो अपने आप को ईश्वर कहता और उसका जो झंडा था प्रहलाद, वो भी ईश्वर आप नहीं मगर ईश्वर खुदा की ज़ात है, भगवान की ज़ात है, वो खुदा। इंडिया एक बहुत बड़ा कोई भी फेस्टिवल हो उसको बहुत बड़े तरीके से और अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो कुछ कोई ऐसी स्पेशल याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्सिटी है हमारे पास, और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं इस तरह के। हर जाहिर की हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ। और ईद होती है जब मुसलमानों की, हम जाके वहाँ पे सेलिब्रेट भी करते हैं उनके साथ, ठीक है। उनके साथ ईद पे वही हम मुसलमान एज ए मेहमान हम उन्हें बुलाते हैं अपने घरों पे भी, कोई बात नहीं, हम इकट्ठे खाना भी खाते हैं। और जिस तरह अभी हम हमारे साथ मुसलमान भाइयों ने यहाँ पे कोऑपरेट किया है, हमारे साथ सेलिब्रेट किया है। आप मुसलमान हैं तो इस तरह हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी तरह यहाँ पाकिस्तान में भी बड़ी डाइवर्सिटी और टॉलरेंस है, और इस तरह का माहौल है वहाँ पर भी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, नो डाउट। हम देखते हैं हर त्यौहार बड़े अच्छे से मनाया जाता है। मगर उसके वालिद ने हना कश्यप ने कई बार कोशिश की कि अपने बेटे को मरवाने की कोशिश करे, मगर वो किसी न किसी मुआवजे से बच्चा बच जाता था, तो वो हर बार बचने पर उसकी खुशी मनाई जाती थी। मगर उसके जो वालिद थे उसने कई बार सोचा कि बच्चा बचता क्यों नहीं है। जब उसकी बहन थी होलिका,
बुनियादी तौर पे होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि उसे ताकत थी कि साल का एक दिन ऐसे आता था कि वो अपने इर्द गिर्द आग लगाती थी और वो चादर लपेट के बैठती थी, उसको आग नहीं लगती थी। तो होलिका ने अपने भाई से कहा कि मैं अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाऊंगी और ये आग उसे लग जाएगी, ये बच्चा भी मर जाएगा और मुझे आग नहीं लगेगी। तो बुनियादी तौर पे वो दिन आया, उसने अपने भतीजे को गोद में बिठाया, प्रहलाद को होलिका ने, उसने अपने भतीजे को गोद में बिठाया, प्रहलाद को होलिका ने। जब आग लगाई गई तो ऐसी हवा चली कि वो चादर जो थी वो उस होलिका से उतर मजहब की वंड तो उत्ते हो के मनाने चाहिए ने, क्योंकि इत्थे ना त्यौहार हिंदू होंदे ने, ना मुस्लिम होंदे ने, ना सिख होंदे ने। बहन भाई, क्रिश्चियन बहन भाई, हिंदू बहन भाई, सिख बहन, सबसे अच्छा ये प्रोग्राम हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब मुस्लिम भी कर रहे यदा हैं। यदा धर्मस्य ज्ञानर्भवता भारत अप्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। सारे इस तरह आते हैं कि जैसे एक नई जिंदगी मिली और ईद हो जैसे। होली मना रहे, बहुत इंजॉय हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। होली को उन्होंने बाकायदा त्योहार बना रखा है। कलर डे पाकिस्तान का कोई त्योहार नहीं है, ठीक है, लेकिन होता तो है कि नहीं? कलर डे स्कूल्स में होता है ना, आप बताएं ना, नेशन वाइज उसको मनाया जाता है। कभी जैसे हमारी ईद होना चाहिए कि नहीं? यार बच्चों का है, वो बच्चे करते हैं बस। आपने देखा है कभी नेशन वाइज जैसे ईद नमाज अदा हमारा त्यौहार है, आपने कहा जी पूरे पाकिस्तान में आज कलर डे है। सर ये भी तो बात है कि होली जो यूनिवर्सिटी में करते हैं वो भी तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना यार। होली ना उनका त्यौहार है, उनको यूनिवर्सिटीज़ में कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आपने होली नहीं मनानी, होली आपने अपनी जगह पर मनाएं, अपने घरों में मनाएं, आप पूरे पाकिस्तान में मनाएं। हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन हम आपको इजाज़त नहीं देंगे हमारे जो अपना त्यौहार है हमारी यूनिवर्सिटी में मनाने की। बड़ी खुशी हुई मुझे कि पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, और इंडिया की तरह ही हमारे साथ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि बड़ा अच्छा चल रहे हैं, कोऑपरेट किया है। वापसी कब है इंडिया? मेरे ख्याल से 1 हफ्ता रहूंगा मैं यहाँ पे, और अब इंडिया से आए हैं सेलिब्रेशन करने के लिए। जाऊंगा सिंध घूमने जाएंगे, आप आगे आ जाए। अच्छा मुझे ये बता, अच्छा हाँ आप क्या कहेंगे? जैसे आपने गंगा जमुना का जिक्र किया है, गंगा जमुना के साथ हमारे लिए सिंधु दरिया भी वो बड़ा एक कीमती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे वेद लिखे गए थे। आपको पता होगा कि रिलीजियस बुक में वेद की एक बड़ी कीमती जगह है। अच्छा, वेद जो हमारे लिखे गए थे वो सिंधु दरिया पे लिखे गए थे, सिंधु दरिया, इसलिए हमें उसका पानी मुकद्दस हम मानते हैं, हम उसको माँ भी मानते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पूरा सिंध, पंजाब, डिफरेंट प्रोविंस है, वो उनका पानी उसका पीते हैं। तो हम हिंदू जो हैं, जिससे भी हमें फ़ायदा होता है तो हम उसे कहते हैं, दर्जा उसे देते हैं। जैसे अब हमारी धरती माता है, ठीक है, हम उनके ऊपर बोझ हैं, ऐसे समझें, तो हम उनके ऊपर बोझ हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं धरती माता, इसलिए हम सिंधु दरिया को भी सिंधु माता कहते हैं। चादर जो थी वो उस होलिका से उतरकर प्रहलाद के इर्द गिर्द लपेट दी गई और वो आग जो थी वो होलिका को लगी और होली जल गई। अब उस खुशी में कि होली जलाई जाती है, फर्स्ट डे जो होता है होली का, उसमें रात के वक्त संध्या का वक्त होता है, शाम को वो होली जलाई जाती है और अगले दिन खुशी का इज़हार करते हुए लोग अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को रंग लगाते हैं। इस वजह से होली सेलिब्रेट की जाती है। really happy because I always wanted to join a Holi Fest. And I love the colors, I love the people dancing, and but I'm sweating like crazy. मुबारकबाद दे रहे हो उनको, उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया। वहाँ पर ये मजहब कार्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता, वहाँ पे इंसानियत को फ़रोग दी जाती है। वहाँ पे ये नहीं कहते कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, अलग अलग हम अपने त्यौहार मनाएंगे, नहीं। वहाँ पे कहते हैं इंसानियत को फ़रोग दो, सब मिलजुल के बांट के खाएं पिएं बैठें एंजॉय करें तो मुल्क आगे तरक्की कर जाता। आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, पूरा एहतमाम है, यहाँ पर खाने का एहतमाम है, कितनी खूबसूरती से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिल्कुल कोई सिक्योरिटी का इशू भी नहीं है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, मैं तो सबसे पहले खराज तहसीन पेश करूंगा सिक्योरिटी का। जब लोग हम एंटर हुए हैं, उन लोगों ने हम लोगों को बड़े अच्छे तरीके से चेक किया है, बड़ा अच्छे तरीके से हम लोगों को लुक आफ्टर किया है। उसके बाद मैं तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इधर बढ़ चढ़कर ये सारे फोकस कर रहे हैं और हिंदुओं के इस त्यौहार को मीडिया पे चलाया जा रहा है, लोग लाइव देख रहे हैं और बड़ा एक अच्छा समा बना हुआ है। जी सर, आपकी तरफ आओगे, बताएं जी कैसा सेलिब्रेशन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, कितनी खुशी यहाँ पर लोगों में नजर आ रही है,
क्या कहेंगे? अब यहाँ पे हम रोकते हैं जी पाकिस्तानी होली को रोक के यहाँ पे हम देखते हैं इंडियन होली वहाँ पे कैसे और कैसे मतलब कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हम एंड पे नेपाल में देखेंगे वो कहाँ पे वहाँ पे कैसे सेलिब्रेट की जाती है। एंड ये सारी जहाँ जहाँ से भी बनी है भाई, देखो एक इंडियन यूट्यूबर ने बनाई है, एक फॉरेन यूट्यूबर ने नेपाल में बनाई है, इंडियन ने अपने मुल्क में बनाई है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने अपने मुल्क में बनाई है। तो सबका अपना अपना सोच विचार एंड रियलिटी है, जो भी दिखा रहा हूँ वो रियलिटी है। तो आपने इस बात को शोर बनाना है, मेक श्योर करना है कि ये उनकी बनाई उन्होंने बताया जो भी बताया। तो हम लड़कियों को टारगेट करना इतना गंदा माहौल कर दिया ना, लड़कियां तो बिल्कुल सेफ ही नहीं रही। सीरियसली मैं खुद बोल रही हूँ। ओ भाई साहब मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ, घर पे है। आप देखो यहाँ का बिहेवियर। ओ माय गॉड, लड़कियां निकल रही, नंबर दे दो मुझे, फूफा घर पे है, वहाँ पे आ जाओ। शेम ऑन यू यार। लोग लड़की और फीमेल्स को टारगेट, पता है उनके ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, ये सब टारगेट करते हैं पिचकारी से। और जब मैंने बोला तो उनको बोल रहे हैं कि तू क्या मरने आई है यहाँ पे, नंबर दे जा अपना। रात में लाइक बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड्स और ये सब। ओ माय गॉड, अच्छा ये भी हो रहा है भाई। लेट्स सी क्या होता है। की होली के बाद अब हम जा रहे हैं नंदगांव की होली देखने। देखते हैं, पहली बार जा रही हूँ, वहाँ का इतना कुछ पता नहीं है। तैयार तो हो गए, वहाँ जाके फिर से बिजुका बनने की तैयारी है। नंदगांव होली जाने के लिए हमें कम से कम 2.5 किलोमीटर पहले उतार दिया। बैरिकेटिंग है, वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा इस कड़क धूप में। और इतनी लंबी लाइन है ना, देखो आप पीछे सब पैदल ही जा रहे हैं। वहाँ से आगे और पीछे से काफी दूर तक 1-1.5 किलोमीटर तक सारी बैरिकेटिंग कर रखी है पुलिस ने। पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही हैं और बाइक वगैरह जो रेंट पे मिल रही है वहाँ मंदिर तक छोड़ने के लिए। देखते हैं वहाँ पे क्या है। लट्ठमार होली सुना है, लट्ठमार होली। सारी होली सी है, लट्ठमार, लड्डू मार, छड़ मार। देखो नाम है अच्छा। काफी लोग जा रहे हैं पैदल ही जा रहे हैं यार। किलोमीटरों में लाइन है। लट्ठमार की दूसरी होली बहुत लोग हैं। लट्ठ भी लेके आई हूँ आज। अच्छा लट्ठ तो किसी की खैर नहीं है। बेवजह परेशान करने वाले, होली खेलने वालों को आज बताती हूँ। लट्ठ से मोस्ट वेलकम होगा, आओ खेलो। अरे आँख में डाल लेते, ये कोई बात होती है? आज तो लट्ठ बरसेंगे बाबा। लट्ठमार होली का स्वाद आज हम भी चखवाएंगे। नंदगांव में प्रवेश पाते ही भीड़ का ऐसा सैलाब देखा तो मानो रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन वो ऑल इज वेल बोलकर थोड़ा समझाया। अब इस जन सैलाब में हमारा पहला लक्ष्य था नंद बाबा का वो मंदिर जहां लट्ठमार होली होने वाली है। मुझे अच्छा लट्ठमार वो कैसे सक्रिय, पर नंदगांव की गलियों के फेर में मैं ऐसी फंसी कि यहाँ से निकलना मानो मुश्किल पड़ गया। नंदगांव वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता और इन्हीं गलियों में दौड़कर खेलकर बड़े हुए। यही यमुना बिहारों में रास रचाई, गोपियों की मटकियाँ फोड़ी, यही की मिट्टी खाई और गायों को चराया। खैर मैंने बरसाने की होली देखी, वृंदावन की देखी और गोकुल की भी, लेकिन जो होली नंदगांव की देखी उसके आसपास कोई भी नहीं। काफी लोग हैं यार। हालत देखो। मजा आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं तो ऐसे कर लेती हूँ। अंदर से बोलना पड़ता है मुझे। कलर बिक रहा है बहुत ज्यादा। ओ भाई साहब मजा यार। ये कुछ थोड़ा सा अलग हो रहा है यार, मतलब लेडीज को जानबूझ के ना होली में बस अब ये रह गया है राइट नाउ ब्रश की होली में लड़कियों को टारगेट करना। अदरवाइज लड़के एकदम सेफ रहते हैं। सबसे खराब चीज जो मुझे लगी नंदगांव की है, नालियों का पानी निकाल के सिर्फ नालियों का पानी, लड़कों पे नहीं। इतना गंदा माहौल कर दिया ना, लड़कियां तो
बिल्कुल सेफ ही नहीं। सीरियसली मैं खुद बोल रही हूँ, डजंट मैटर कि मुझे बहुत हेट मिलेगा, आई नो, बट फिर भी आप ये देखो, अभी देखो लड़के निकल रहे हैं, अभी कोई कलर नहीं डाला है। जैसे ही लड़की आएगी ना, वैसे ही नाली, ये जो नाली चल रही है ना, आप देख रहे हो, इसका पानी भरते हैं और लड़कियों को ऊपर डाल रहे हैं। और आप कितना ही रोको, कुछ कोई वो नहीं है। ये देखो, सिर्फ लड़कियों को टारगेट करते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। ये गलत है, मतलब लाइक लौंडे एकदम सेफ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे खड़े हुए हैं, नाली 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 का पानी यहाँ भर के लड़कियों को ऊपर डाल रहे हैं। ये सब ये यहाँ की अब इमेज कर दी उन्होंने कृष्ण भगवान राधा जी की इमेज। ये मेरा भाई बेचारा परेशान है। लड़कियों के पिछवाड़े पे जो तुम लंग बने कर रहे हो ना, ओ भाई राधे के नाम पे, अरे हिजड़ो हिजड़े हो, हिजड़े 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 हो सबके सब। सही कह रहा है यार। जो लड़कियां गुजर रही उनको नहीं कुछ टारगेट कर रहा, उनको टारगेट कर रहे हैं, मर्दों को नहीं। वो देखो सब दिख रहा है यहाँ पे, नाली का पानी फेंक रहे हो लोगों पे गंदा, शर्म नहीं आती तुमको? गलत बात है। बेशरम नाली का पानी फेंक रहे हो गंदा। ओ भाई राधे के नाम पे गंदगी मचा रहे हो, राधे के नाम पे, पुलिस वाले राधे के नाम पे गंदगी फैला रहे हो, नाली का पानी फेंक रहे हो, लोगों को शर्म नहीं आई तुमको? नाली का पानी गंदा फेंक रहे हो। खेलने आई लड़के मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ, हमारे फूफा घर पे है। अब होली ब्रिज गलत बात है। बहुत ज्यादा लाइक आप देखो यहाँ का बिहेवियर, मतलब यहाँ होली तो रही नहीं है। मतलब आप तीर्थ स्थान आ रहे हो और आप ये सब हो रहा है यहाँ पे। लड़कियां निकल रही, नंबर दे दो मुझे। मतलब लड़कियों पे देखा जा सकता है, लड़कियां जब आती हैं तब कलर फेंका जा रहा है। लड़कियां मेरे को कमेंट करती थी कि आप होली में जा रहे हो, सेफ नहीं। सीरियसली मैं बोलती हूँ दिस इज नॉट सेफ प्लेस फॉर एनी गर्ल, सिंगल गर्ल। कोई होली नहीं है यहाँ, सिर्फ लड़कियों से बदतमीजी, उनके प्राइवेट पार्ट को परेशान। पुलिस करे भी करे क्या, पुलिस करे भी करे क्या, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं लोग। लड़की और फीमेल्स को टारगेट, पता है उनकी ब्रेस्ट पे सब टारगेट। और जब मैं वो देखो तू क्या मरने आई है यहाँ पे, नंबर दे जा अपना, रात में लाइक बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड्स होते हैं। बहुत गलत बात है। बताना चाहिए कि भाई सीरियसली प्लीज मत आओ ऐसी जगहों पे, तीर्थ स्थान नहीं बचे ये सब, इनका ये सब हो गया। टारगेट किया उन लोगों ने, मतलब लड़कियों को मोस्टली टारगेट कर रहे हैं। आपको किया ना, बहुत ज्यादा किया, बदतमीजियां कर रहे हैं, लड़कियों को कर रहे हैं। लड़के एकदम सेफ है, आप देख लो, और कुछ नहीं कर रहे। नाली का पानी डाल रहा है, पता है आपको? देखो आप ये कमरे और मिले, ये देखो इनकी हालत। आज जो इंसिडेंट हुआ ना, उससे सच में मैं परेशान होकर रह गई कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। जब उन्हें पता है कि तीर्थ स्थान है, यहाँ पे लड़कियां आ रही हैं, लड़के आ रहे, इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन मैंने ये नोटिस किया वो क्या कर रहे थे, सिर्फ लड़कियों को टारगेट कर रहे थे। मतलब लड़कियां आ रही, लड़कियों पे फेंक रहे। क्रॉस हो गई कि वो नालियों से पिचकारी में पानी भर के लड़कियों के ऊपर डाल रहे हैं। आप देखो इस वीडियो में कि वहां से काफी लड़के भी निकल रहे हैं, लोग भी निकल रहे हैं, और इसको कोई नहीं फेंक रहा लड़कों को, और टारगेट कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट को। अब आप बताओ एक आदमी कितना इग्नोर करेगा इस चीज को? 1 2 बार 3 बार 4 बार। मैं वहीं खड़ी हो गई, मैंने देखा बड़े ध्यान से, मैंने सोचा शायद मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या मैं ज्यादा सोच रही हूँ, पर नहीं। कई लड़कियां तो रोने लगी। मैंने एक लड़की का वीडियो बनाया अपने साथ में, वो रोने लगी कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। नाली का पानी आप डाल रहे हो, उसके बाद लोग मंदिर जाना पसंद करेंगे। मैं सच बताऊं, मैंने बहुत इग्नोर करने की कोशिश करी कि ठीक है यार, इन्हें कोई नहीं सुधार सकता, मैं अपना एंजॉयमेंट क्यों खराब करूं, मैं लठ मारूंगी देखती हूँ। पर ये चीजें ऐसी थी ना, इनकी बात हजम नहीं होती, कर पा रही थी। मैं बहुत इमोशनल हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मेरा डिसीजन गलत है आने का, या फिर चीजें अब ऐसी होने लगी हैं। इंक्लूडिंग आप ही सोचो, वो लड़के इतने ज्यादा बेशरम थे, मेरे ख्याल से होने लगी है यार। मैंने भी इतना नहीं सुना था पहले। उस टाइम मैंने यही समझा कि शायद मुझे अब घर चले जाना चाहिए। मैं मंदिर गई, मैंने बहुत खुद को कंट्रोल किया, मैंने थोड़ा बहुत एंजॉय करने की कोशिश करी, खुद को शांत किया, पर नहीं। मेरे साथ मेरी एक और फ्रेंड थी, उसके साथ भी हुआ। पता नहीं वो लोग ये सब क्यों कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुलिस वाले थे वो उनसे भी ज्यादा बदतमीज है कि हम क्या करें, इसमें होली खेलने आए, ये सब देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई।
यहाँ पर मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि सारा का सारा जो ब्रजवास है या जहाँ पे मैं गई थी नंदगांव में वो सब बेकार है वहाँ के लोग, पर मैं ये देख रही थी कि वहाँ पे काफी लोग छतों से खड़े होकर देख रहे, वो लड़कों को रोकते। वहाँ लड़कियां तो नहीं थी ना जो लड़कों को छेड़ रही थी, लड़के ही थे ना जो छेड़ रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहे थे। और अगर इस तरीके से मेरे पे पहले कमेंट्स आते थे इस चीज के कि होली सेफ नहीं है, लड़कियां मुझसे बोलती थी वहां जाना, मैं कहती थी नहीं सेफ है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था। इस बार जब हुआ ना, मैं हिल रही थी ये सब देख के कि मैं कैमरा ऑन करके खड़ी थी, मैं बोल रही हूँ, वो बंदा आके मेरे कैमरे बोल रहा है, ब्लॉगिंग कर रही है, ये कर रही है, हाँ बता, मुझसे अब्यूजिव वर्ड बोल रहा है, मुझसे कह रहा है कि अपना नंबर दे दे। और आई कांट एक्सप्लेन कि मैंने क्या देखा। सब चीजें तो फोन में रिकॉर्ड नहीं कर सकती ना मैं। वहां मैंने रिकॉर्डिंग करी, उससे पीछे एक गली में तो मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकती थी क्योंकि स्टेयर के ऊपर मैं खड़े होकर रिकॉर्डिंग करी थी। वहां तो गली बिल्कुल प्लेन थी ना, जिस वजह से मैं ऊपर भी नहीं खड़ी हो पा रही थी। और उनके फैमिली मेंबर खड़े थे, उनको बोलना चाहिए। यहाँ पे हम रोकते हैं जी, ये भी होगी, हमने इसका भी ले लिया पॉइंट। अब हम यहाँ पे रोक के हम चलते हैं नेपाल की होली की तरफ, एंड हम सारी फिर बातें जो हैं वो एंड पे करेंगे कि कहाँ पे क्या अच्छी थी, कहाँ पे क्या मतलब सुकून से हुई है, कहाँ पे ज्यादा एंजॉय किया जा सकता था। तो चले जी हम नेपाल की होली की तरफ चलते हैं। कितना गैप लोगों में है ना। हैप्पी होली। बड़े रोड पे। We are now in Pokhara, Nepal, and we are celebrating Holi from here. There are lots of tourists behind us. So amazing, guys! Let's join this Holi party. अच्छा इनका गैप है लोगों में ना, देखो मतलब ये देखो ना, लड़कियों और लड़कों में गैप है। तो ये तो सब पे फेंक रहे हैं। चलिए ये चलता है, मतलब इतना तो चलता है कि सब पे फेंको, लेकिन अगर आप एक लड़कियों को टारगेट बनाए तो वो गलत बात है। Happy Holi. फॉरनर भी थे यार। हो भाई, तो देखो ना लड़कियां और वो सारे मतलब बड़े सुकून से, बहुत सुकून से खड़े हुए हैं यार। As I'm in Nepal, I was a little bit sad that I couldn't celebrate Holi, but now I'm so happy that everyone in the street are celebrating Holi. There are lots of foreigners from around the world celebrating Holi here. It is so amazing, guys. We were planning to visit this Barahi temple, but I think today we won't be able to visit the temple like this. Let's see, let's visit tomorrow then. ओ भाई साहब, amazing, amazing guys.
मतलब ये इनकी खास बात ये है कि नेपाल में जो लोग देखो ना हरास में जा रहे हैं, हर कोई दूर दूर खड़ा है, हर कोई कितना दिल करता है लगाता है, जिसका दिल करता है लगाता है, और जिस पे लगाया जाता है वो भी फील नहीं करता, मैं फील नहीं करता जब आपकी कम हुआ है और ना जोर जाता है। सब सुन ले रहे हैं। Along the bushes. संतान और वो वाली होली होती है यार। Happy Holi! Happy Holi! Happy Holi! यार लोग कितने खुश होकर रह रहे हैं ना, खुले 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 रोड पे। Guys, it was an unforgettable Holi celebration in Pokhara, Nepal. Hope you all also enjoyed this Holi festival. So see you in the next episode. Until then, bye. Jai Shiva Shakti. Happy Holi. यहाँ बैंड करते हैं जी इसका। तो हमने देख लिया जो है वो 3 कंट्री की होली। तो मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये है कि यार माइनॉरिटी में रहते हैं हिंदू, तो यहाँ पे जब होली होती है तो वो फिर कहीं कहीं किसी किसी जगह पे होती है। लेकिन इस बार मैंने भी खुद ऑब्जर्व किया है, बहुत सारी जगह पे खेली गई है। जैसे लाहौर में नहीं खेली जाती थी, इस दफ़ा लाहौर में बहुत ज़्यादा खेली गई। मुल्तान में नहीं खेली जाती थी, मुल्तान में भी खेली गई है। उसके अलावा सिंध में तो वैसे हिंदू रहते हैं तो वहाँ पे बहुत खेली जाती है। एंड मैं आपको ये बता दूं कि हम एज ए मुस्लिम हम अगर मनाते नहीं है ना होली, बट हम रिस्पेक्ट करते हैं होली की। मतलब दूसरे मज़हब के त्यौहार होते हैं या दूसरे मज़हब का कुछ भी होता है ना, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। एंड हम रिस्पेक्ट करते हैं और अल्लाह ताला भी हमें फरमाते हैं कि आप रिस्पेक्ट करते हैं। हम मनाते नहीं है तो कोई वो बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं सब मज़हब के त्यौहार की, बट जो होता है ना हम लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। एंड बात कर लें कि इंडिया की होली की, यार मैं मतलब बहुत ज़्यादा इस दफ़ा ना मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देख के मतलब ये पता है मुझे कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हो जाना इंडिया में। और मतलब इतना बड़ा कंट्री जिसमें ज़्यादा मेजोरिटी में ज़्यादा हिंदू रहते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि 80 करोड़ से ऊपर या 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, बेशक ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। तो फिर वहाँ पे ऐसा हो जाना ये बहुत मतलब यार कितना बुरा था ना। मैंने खुद, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो जब लेडीज जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, तो लड़कियों को हाथ लगा रहे हैं या फेंक रहे हैं कलर, और फिर
नालियों से पानी भर भर के पिचकारियां मार रहे हैं, तो ये बहुत बुरा लगा यार। ये साफ साफ नजर आ रहा है। एंड ये इंडियन यूट्यूबर है, किसी अपनी तरफ से नहीं मैंने बनाया, ये इंडियन यूट्यूबर खुद आप खुद बता रही हैं कि ये बहुत बुरा लगा मुझे। मतलब गालियां भी दे रहे हैं और नंबर मांग रहे हैं और प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगा रहे हैं, ये बहुत बुरा लगा इस दफा। तो मतलब ये हद ही हो गया है। ये बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं सामने सोशल मीडिया में, मैंने और भी देखे हैं कि इस दफा जो है ना वो कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत बुरे तरीके से होली को मनाया गया। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस चीज़ पे देखना चाहिए। एंड फाइनली नेपाल की बात करें, नेपाल की होली जो है ना वो बहुत अच्छे लेवल पे मनाई जाती है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हिंदुइज्म में अगर कहा जाए ना कि होली कहाँ पे ज़्यादा सही सेलिब्रेट की जाती है, तो मेरे ख्याल से नेपाल में मुझे ऐसा यूँ लगता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है, मैंने रिएक्शन भी किया है। तो वहाँ पे ये होता है कि आप किसी को हरास नहीं करते हैं। आप अगर किसी से पूछते नहीं है ना कलर लगाते हुए, तो आप किसी को हरास भी नहीं करते हैं। मतलब किसी को जाते हुए किसी प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ नहीं लगाते हैं। और लोगों के दरमियान में, लोगों के बीच में ना वो होता है, मतलब थोड़ा गैप होता है, दूर दूर खड़े होते हैं, बिल्कुल साथ चपक के नहीं खड़े होते। बड़े बड़े रोड्स पे खुले खुले जा रहे होते हैं लोग, एंड कलर लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, फेंक भी रहे हैं। बट उसमें अगर हाँ ऐसी जगह पे, नेपाल जैसी जगह पे आप इजाजत ना भी ली जाए तो कोई बात नहीं। मुझे यूँ लगता है क्योंकि वहाँ पे इजाजत और परमिशन लिए बगैर आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को समझ है, बूझ है, उनको समझ आती है कि कैसे मनानी है होली। ये नहीं है कि भाई आप किसी को अगर बिना पूछे लगा भी रहे हो तो आप कहाँ पे लगा रहे हो, प्राइवेट पार्ट्स पे लगा रहे हो, हरास कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो नेपाल की होली मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर लगी। मतलब सेलिब्रेट करने के मामले में देखा जाए हिंदुओं के लिए, तो वो ज़्यादा मुझे लगा कि वहाँ पे ज़्यादा सेफ है। एंड इंडिया की बात की जाए तो मेरे भी ख्याल से, मैं नहीं कहता कि सारे ऐसे होंगे, और भी बहुत जगह पे अच्छी भी मनाई गई होगी, लेकिन ज़्यादातर केस तो यही देखें। आप भी गूगल करके देखें, सोशल मीडिया पे देखें, यूट्यूब पे देखें, आपको वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगे। तो ये वाली वीडियो देख के काफ़ी यार मुझे ना मतलब थोड़ी सी हैरानगी हुई। एंड आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि भाई आपको किस कंट्री की ज़्यादा होली अच्छी लगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप वीडियो अच्छी लगी। वीडियो करते लाइक, एंड चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, अल्लाह हाफिज़।